السلام علیکم ایوری ون، اٹس می ارمش خان زادہ اینڈ یو آر واچنگ اے زیڈ اسٹوڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم پھر سے دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے انٹیریئرز کے رینڈر نکال سکتے ہیں D5 کے اندر، اور ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ماڈل کو D5 کے اندر امپورٹ کروا سکتے ہیں، اپنے سینس کو کریٹ کر سکتے ہیں، اپنی لائٹنگ اینڈ مٹیریلز پہ ورک کر کے ایک ہائی کوالٹی رینڈرز نکال سکتے ہیں۔ یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے، تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس اسکیچ اپ کے اندر ایک یہ لیونگ روم کا ماڈل ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ساری مٹیریلز اینڈ ماڈلز وغیرہ آلریڈی پلیس ہیں، بس اب ہمیں اس کا رینڈر نکالنا ہے۔ تو رینڈر نکالنے کے لیے میں کیا کروں گا، سب سے پہلے اس کو D5 میں امپورٹ کراؤں گا۔ D5 میں کس طریقے سے امپورٹ کراتے ہیں، آپ کے پاس یہاں پہ آپشنس ہوتے ہیں D5 میں امپورٹ کرانے کے لیے۔ آپ نے یہاں پہ فرسٹ ون کو کلک کرنا ہے، کنیکٹ ٹو D5۔ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کا D5 اوپن ہو جائے گا۔ تو ہمارے ماڈل سکسیسفلی D5 کے اندر امپورٹ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ بگنر گائیڈز آتی ہیں، اس کو فی الحال میں اسکپ کر دیتا ہوں۔ دین یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ ہمارا ماڈل لوڈ ہو جائے، اینڈ یہاں پہ ہمارا ماڈل بھی لوڈ ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں کیا کروں گا، سب سے پہلے تو میں یہاں سے آربٹ سے ہٹ کے فلائی پہ آ جاؤں گا، جس کا شارٹ کٹ ہوتا ہے Alt+V۔ دین اس کے بعد میں اپنے سین پر جاؤں گا، جو کہ میرا سین یہ ہے۔ اب اس کے لیے میں کیا کروں گا، یہاں پہ اب دیکھیں اس کو میں اس طریقے سے کر رہا ہوں تو بیچ میں میرے پاس کیا آ رہی ہے، یہاں پہ وال بیچ میں آ رہی ہے۔ اگر میں اپنے ویو کو دیکھوں گا تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، یہاں پہ سیکشن کٹ لے لوں گا۔ سیکشن کٹ کیسے لیا جاتا ہے، یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے، وہ ابھی نہیں آ رہا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے لے کے آتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ پریفرنسز میں جانا ہے، دین اس کے بعد آپ کے پاس ویڈجٹس ہوتا ہے، یہاں پہ جانا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوگا سیکشن ٹول کا۔ تو جیسے ہی آپ ویجٹس میں آئیں گے آپ کے پاس یہاں پہ آپشن ہوتا ہے سیکشن ٹول کا، یہاں پہ آپ نے سیکشن ٹول کو انیبل کر لینا ہے۔ انیبل کر لیں گے تو آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ سیکشن کٹ والا ٹول شو ہو گیا ہے، صحیح۔ تو اب نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ایڈ سیکشن میں جانا ہے۔ ایڈ سیکشن میں جانے کے بعد آپ نے سیکشن پلین سلیکٹ کرنا ہے۔ سیکشن پلین سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈ سیکشنز کر دینا، یہاں پہ لا کے پلیس کر دینا۔ اب اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف موو کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا جو ویو ہے وہ آپ کو ویزیبل ہو جائے گا، اس طریقے سے دیکھیں۔ زیادہ نہیں چاہیے ہمیں، ہم تھوڑا سا اس کو پیچھے کی طرف کرتے ہیں اس طریقے سے، تو اتنا سین کافی ہے۔ اب اتنا کرنے کے بعد ہم اپنے جو ہے کیمرے کو سیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس طریقے سے اتنا ویو ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ کیا کروں گا، سب سے پہلے کیمرے میں جا کے آٹو ایکسپوجر کو آف کروں گا، جس سے ہمیں لائٹنگ کا پراپر طریقے سے پتہ لگے۔ کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں لائٹنگ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کروں گا۔ لائٹنگ پہ ورک کرنے کے لیے میں کیا کروں گا، یہاں پر HDRI پہ آ جاؤں گا۔ HDRIs میں آپ یہاں سے اس کی پری انسٹالڈ والی HDRIs بھی یوز کر سکتے ہیں، اینڈ آپ یہاں سے کسٹم بھی HDRIs یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں اس طریقے سے کر رہا ہوں۔ اب اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہے تو آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ ڈاؤن لوڈ کس طریقے سے کرتے ہیں، آپ نے یہاں سب سے پہلے کروم پہ جانا ہے، دین اس کے بعد یہاں سے آپ کے پاس ویب سائٹ ہوتی ہے پولی ہیون کی، پولی ہیون۔ دین اس کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے، اینڈ یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف HDRIs مل جائیں گے۔ وہاں سے جسٹ آپ نے اس HDRI کو سلیکٹ کر لینا ہے، جیسے کہ یہاں پہ براؤز HDRIs، اینڈ یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس آف HDRIs آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بس اس پہ جانا ہے، اینڈ دین اس کے بعد HDR کو سلیکٹ کر کے 4K کوالٹی جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنا ہی بیٹر آپ کا HDRI نکل کے آئے گا، یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کچھ نہیں کرنا، آپ نے یہاں سے جسٹ HDRI پہ سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ کسٹم HDR پہ جا کے آپ نے اپنی HDRI کو پک کر لینا ہے۔ تو میرے پاس یہاں پہ آلریڈی انسٹالڈ ہے تو بس میں انہی کو یوز کر رہا ہوں۔ دین اس کے بعد میں یہاں سے کیا کروں گا، سن کو انیبل کروں گا۔ انیبل کرنے کے بعد یہاں سے کسٹم پہ جاؤں گا۔ کسٹم پہ جانے کے بعد اس کے تھوڑے سے الٹیٹیوڈ اور ایزیموتھ کو تھوڑا سا اینگل میں اپنی لائٹ کو اندر لے کے آنے کی کریں گے، اس طریقے سے دیکھیں، زیادہ نہیں، بالکل اس طریقے سے۔ اینڈ یہ اتنا ہو گیا۔ ڈسک ریڈیس آپ تھوڑا سا بڑھا دیجئے، اینڈ سینڈ کی برائٹنس آپ یہاں سے کر دیجئے 0.3۔ دیکھیں اس طریقے سے اب کافی اچھا جو لک ہے وہ ہمارے پاس نکل کے آ رہا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اب ہم اس کی انٹیریئر کی لائٹنگ پہ ورک کریں گے۔ انٹیریئر کی لائٹنگ پہ ورک کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں لائٹ کا سورس ہونا ضروری ہے، تو اب دیکھیں یہاں پہ لائٹ کا کوئی سورس موجود نہیں ہے، تو میں یہاں پہ سب سے پہلے اسکیچ اپ میں جا کے فٹافٹ سے انٹیریئر کے اسکیچ اپ میں جا کے تو میں یہاں پہ فٹافٹ سے اسکیچ اپ پہ جا کے لائٹ پلیس کرتا ہوں۔ دین اس کے بعد جو ہے اس کو گلو کرنا سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کی انٹینسٹی وغیرہ انکریز کر سکتے ہیں، کہ کس طریقے سے ہم اس کی انٹینسٹی وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں۔
मैं सबसे पहले स्केचअप के अंदर चला जाता हूँ। स्केचअप में मेरे पास यहीं पे एक लाइट का मॉडल पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं सीलिंग लाइट लूंगा एक, देन उसके बाद इसको मैं अपनी सीलिंग पे प्लेस कर दूंगा इस तरीके से। एक यहाँ प्लेस करूंगा, देन उसके बाद एक यहाँ पर, थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेता हूँ इसको इस तरीके से, देन उसके बाद एक मैं यहाँ प्लेस कर लूंगा, ठीक है। अब इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे लेके आऊंगा, सॉरी साइड में लेके आऊंगा। साइड में लाने के बाद मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, सॉरी डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो देखें आपके पास यहाँ पे सेंटर में भी लाइट आ गई। अब ये सेंटर वाली मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपने लाइट्स लगा ली। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, चेक करते हैं। सही लग रही है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको एक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल इसके सेंटर से एक लाइन बना लेनी है, जैसे मैं बना रहा हूँ। बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पिक करना है स्पॉटलाइट को, एंड यहाँ से इसके कंपोनेंट के अंदर जाना है ताकि वो लाइट सब पे अप्लाई हो जाए। एंड बिल्कुल इसके एज से आपने अपने इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एंड ऐसे ही फिर आपको ये अगले उस पे भी चाहिए होगा, तो आपने इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, सॉरी, तो इसको भी आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, D5 के अंदर जाता हूँ, एंड देखें अब आपके पास जो लाइट आपने एक पे अप्लाई की थी वो सब पे अप्लाई हो गई है। सबसे पहले तो इसकी इंटेंसिटी कम करेंगे, हमें इतनी नहीं चाहिए। देन उसके बाद यहाँ से कॉन एंगल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि लाइट अच्छे से हर जगह स्प्रेड हो। देन उसके बाद देखें अब आपके पास कितना अच्छा लुक निकल के आ रहा है। यहाँ से इंटेंसिटी इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ी सी, Ctrl Z, ये इनको इसको नहीं करना था, और यहाँ से इसको मैं काम करता हूँ, कर लेता हूँ 1 कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इंटीरियर लाइट्स ज़्यादा ग्लो हो रही हैं। इसको आप सिलेक्ट करें दोबारा से और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यहाँ से आप कर लीजिए अराउंड 95। देन कॉन एंगल बढ़ा लीजिए इस तरीके से। अब चेक करते हैं तो ये जैसे ये वाला जो इफेक्ट आ रहा है ये नहीं है, तो यहाँ से आप कॉन एंगल को कम कर दीजिए इस तरीके से। अभी भी आ रहा है, दोबारा से जाएंगे, यहाँ से कॉन एंगल को मैं कर दूंगा इतना। अब चेक करते हैं, अभी भी थोड़ा सा है, तो यहाँ से आप इसको कर दीजिए कॉन एंगल को 65। तो अब बिल्कुल हट चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से अब देखें सन का आप बड़े इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी सी कम करके चेक करता हूँ, इसको कर देता हूँ अराउंड में 55। अब देखते हैं, हाँ अब ठीक है। अच्छा अब फिर मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ से इतना मुझे व्यू सही लग रहा है, एंड उसके बाद मैं इसको अपने सीन को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से आप Alt+S प्रेस करें तो आपका जो सीन है वो क्रिएट हो जाएगा। इतना करने के बाद अब देखें आपके पास ये साइड में यहाँ पे भी आपको लाइट्स चाहिए, तो अब भले आप यहाँ पे सोर्स नहीं दिखाएं बट यहाँ पे लाइट्स को ग्लो करवा दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से दोबारा से किसी एक लाइट को कॉपी कर लूंगा मैं, बल्कि आप अलग से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से आपने पॉइंट लाइट लेनी है और इसको इस तरीके से आपने यहाँ पे अपने लाइट के कॉन को बना देना है। देन उसके बाद फिर इसको एक एक करके हम प्लेस करेंगे। मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ सबसे पहले इस तरफ। देन उसके बाद यहाँ से दोबारा से मूव कराऊंगा कंट्रोल प्रेस करके इसकी कॉपी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल पीछे की तरफ लेके आऊंगा यहाँ तक। देन उसके बाद इसको डिवाइड बाय 4 करा दूंगा ताकि इसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो। डिवाइड बाय 3 ठीक है, या डिवाइड बाय 2 ठीक है। इस तरीके से अब अपने सीन पे जाके देखते हैं तो देखें ये चीज भी यहाँ पे ग्लो हो जाएगी। अब ये लाइट्स अलग हो गई, ये लाइट्स अलग हो गई, तो इनकी आप कॉन एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दें और इंटेंसिटी आप भले कम कर दें इस तरीके से, ठीक है। अब अपने सीन पे जाके देखें तो आपका सीन अब साइड से भी ग्लो हो रहा है, यहाँ से भी। अब इसको आप लाइट्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इनको थोड़ा सा वार्म इफेक्ट दे दें ताकि कोजी से एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, देखें इस तरीके से। अच्छा अब पीछे हमारे पास शेल्फ्स हैं, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इधर भी लाइट्स स्ट्रिप लाइट्स को ऐड करूंगा। कैसे ऐड करते हैं जरा ये देख लेते हैं।
अब स्ट्रिप लाइट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आएंगे एंड ऐड लाइट्स पे आ जाने के बाद स्ट्रिप लाइट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपकी ये ऐड हो गई, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करके चेक करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसका वाई एक्सिस की वैल्यू को कम करेंगे, इतना कर लिया। देन उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कर देता हूँ मैं यहाँ से वार्म की तरफ 3400। एंड अब इसके बाद मुझे इसको मल्टीपल कॉपीज करनी है। तो मल्टीपल कॉपीज करने के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पे अपने एरो को पहले शिफ्ट को होल्ड करना है, फिर एरो को ड्रॉप डाउन कर देना है इस तरीके से। तो आपके पास ये मल्टीपल कॉपीज होती रहेंगी इस तरीके से। करने के बाद दोबारा से ऐसे ही करना है, आपने शिफ्ट को होल्ड करके इसकी एक और कॉपी क्रिएट करनी है। देन उसके बाद ऐसे ही आपने कंट्रोल Z इसको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ से भी इसको ऐसे इसकी मल्टीपल कॉपीज कर देंगे। करने के बाद अपने सीन पे जाके देखते हैं, तो देखें आपका ये जो इफेक्ट है काफी अच्छा लग रहा है। तो देखें ये जो आपकी लाइट्स हैं काफी अच्छी लग रही हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी हमें प्लेस करनी है, तो इसके लिए भी वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ से मैं ऐड स्ट्रिप लाइट्स में जाके दोबारा से स्ट्रिप लाइट को ऐड करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा। करने के बाद वाई एक्सिस की वैल्यू वाई की वैल्यू कम करूंगा इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से मैं वही वार्म इफेक्ट दूंगा इसको 3400, सॉरी 3400। देन उसके बाद शिफ्ट और होल्ड करूंगा इसको, इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाऊंगा। दोबारा से शिफ्ट एंड होल्ड, और उसके बाद इसको भी यहाँ पर दोबारा से शिफ्ट एंड होल्ड, एंड देन फिर ये नीचे, फिर और भी नीचे आ जाएगा तो हम और भी नीचे ले जाएंगे इस तरीके से। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ करूंगा। अब अपने सीन पे चल के देखते हैं, देखिए अब कितना अच्छा जो लुक है वो हमारे पास निकल के आ रहा है। अब देखें यहाँ पे भी लाइट्स हैं, तो इनको भी मुझे ग्लो करवाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आई प्रेस करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं इमर्सिव कर देता हूँ। इमर्सिव करने के बाद यहाँ से इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज करने के बाद फिलहाल तो हमें फर्दर ऐसी लाइट्स की नीड नहीं है, बट अगर हमें यहाँ पे लाइट्स होती तो यहाँ पे मैं लाइट्स की नीड होती तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता, बट यहाँ पे बाहर से हमारे पास एक्सटीरियर लाइटिंग आ रही है तो इसकी हमें नीड नहीं है। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा कि ये देखें यहाँ पे जो सोर्स था उसको हमने ग्लो नहीं करवाया है, तो इसको ग्लो करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास लाइट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें इसका लाइव सिंक ऑन नहीं था। तो मैं इसको सिंक को ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने वहां पे सिंक्रोनाइज करा है, तो यहाँ पे जो मेरे मॉडल्स थे वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले तो मैं आई प्रेस करूंगा। देन उसके बाद इस मटेरियल को सिलेक्ट करके इमर्सिव कर दूंगा और इसकी इंटेंसिटी अराउंड मैं कर दूंगा 55, ठीक है। देन उसके बाद मैं अपने सीन पे वापस जाता हूँ। सीन पे वापस जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रिप लाइट्स है मुझे इनकी लाइट्स भी कम लग सॉरी इनकी इंटेंसिटी भी कम लग रही है, तो इनकी इंटेंसिटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 70%। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके मटेरियल पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये क्लॉथ है, अब यहाँ पे हम जब इसका रेंडर निकालेंगे ना तो इस पे शाइन आएगी। तो इस शाइन को कम करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसकी रफनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा, इसके स्पेक्टुलर को कम कर दूंगा। देन उसके बाद ये सोफे का मटेरियल है, इसकी रफनेस को भी इंक्रीज करूंगा, स्पेक्टुलर को कम कर दूंगा इसी तरीके से। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये है, इसको भी चेक करते हैं। स्पेक्टुलर कम है, रफनेस थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा, ये वाला मटेरियल स्पेक्टुलर कम एंड रफनेस को इंक्रीज कर दूंगा। इस तरीके से कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये मटेरियल फ्लोर है, फ्लोर पे हमारे पास टाइल्स है, तो इस यहाँ पे मैं रफनेस को कम करके देन उसके बाद मेटेलिक को इंक्रीज करूंगा इस तरीके से। स्पेक्टुलर को थोड़ा सा चेक करते हैं अपने सीन पे जाके कि ज्यादा क्या सुटेबल लग रहा है। इस तरीके से देखें, यहाँ से मैं जाता हूँ डिस्प्ले, देन उसके बाद यहाँ से इसको रेंडर करके चेक करते हैं। तो देखें हाँ, ये इस तरीके का जो हमारा फ्लोर है वो काफी अच्छा निकल के आया। तो आप यहाँ से इसको डिस्प्ले में जाके इसको रेंडर कर लेंगे तो आपको अपने मॉडल की प्रिसीजन पता चल जाएगी। एंड अब मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे स्पेस है सीलिंग पे, तो यहाँ पे भी स्ट्रिप लाइट्स को ऐड करता हूँ। वो किस तरीके से ऐड करते हैं जरा ये भी देख लेते हैं। यहाँ से आपने आना है
स्ट्रिप लाइट, देन उसके बाद यहाँ से अपने स्ट्रिप लाइट को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, यहाँ से वायर फ्रेम मोड सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद देन टॉप पे चले जाना है। टॉप पर जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको पीछे की तरफ करना है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसके स्केल को इंक्रीज करना है इस तरीके से। देन उसके बाद आप दोबारा से अपने सीन पर आ जाएं। सीन पर आने के बाद देखें आपका जो स्ट्रिप लाइट है अच्छे से प्लेस हो चुकी है। एंड अब मैं इस स्ट्रिप लाइट्स को बाकी जगहों पे भी प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑल्ट 2 करूंगा जो कि शॉर्टकट होता है वायर फ्रेम मोड का। देन टॉप व्यू पे जाऊंगा। टॉप व्यू पे जाने के बाद अपने स्ट्रिप लाइट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को होल्ड करके, सॉरी कंट्रोल जेड, शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ से इसको पीछे की तरफ लेके जाऊंगा और उसके बाद देन इसको रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरह से। देन उसके बाद दोबारा से अपने पर्सपेक्टिव मोड पे जाऊंगा एंड देन उसके बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ से मैं अपने रेंडर मोड पे आ जाता हूँ इस तरीके से। तो देखें ये भी लाइट आपके यहाँ पे लग चुकी है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट की तरफ भी लगानी है तो फ्रंट की तरफ भी लगा लेते हैं। आपने दोबारा से ऑल्ट 2 को प्रेस करना है, देन टॉप व्यू पे जाएंगे। टॉप व्यू पे जाने के बाद आपने दोबारा से शिफ्ट को होल्ड करके इसको पीछे की तरफ ड्रैग करना है, इसको रोटेट करा देना है। रोटेट कराने के बाद अपना एक सेट कर लेना है, देन उसके बाद इसको आगे की तरफ करेंगे हम एंड देन दोबारा से पर्सपेक्टिव मोड पे जाएंगे जिसका शॉर्टकट होता है पी। और फिर उसके बाद यहाँ से आपने डिस्प्ले पे जाके अपने रेंडर मोड पे आ जाना है एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे ताकि इसको हम अच्छे से प्लेस कर सकें। ठीक है, इसकी वाई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। देन उसके बाद अपने सीन पे जाके देखते हैं तो हमारी जो लाइट्स हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पे लग चुकी हैं। अब इन स्ट्रिप लाइट्स को आप ऐड करके कंट्रोल जी कर दीजिए ताकि ये अलग से हो जाएं। एंड अगर आप यहाँ से इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कर देता हूँ अराउंड 60%। तो ओवरऑल हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने एडजस्ट कर लेते हैं जितना व्यू हमें सीन के अंदर चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इतना व्यू अपने सीन के अंदर चाहिए जो मैं रेंडर निकालूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ से अपने कैमरे को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे जाएंगे, इफेक्ट्स पे जाके इसके थोड़े से एक्सपोजर वगैरह को कंट्रोल करेंगे। मुझे एक्सपोजर कम लग रहा है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा अराउंड 0.05। देन उसके बाद हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा मैं इस तरीके से। शेडो लोकल एक्सपोजर को भी इंक्रीज करूंगा या इसको डिक्रीज ही रहने देते हैं। कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा नहीं, अराउंड 0.5। हाईलाइट्स को मैं कम करूंगा, ज़्यादा ही हो रही हैं। देन शेडोज भी इंक्रीज करूंगा मैं थोड़ा सा इस तरीके से। इसको भी मैं 0.5 ही रखता हूँ, 0.5। और इसको मैं थोड़ा सा वार्म रखूंगा। कोजी से इफेक्ट देने के लिए आपको अपने जो मॉडल है उनको थोड़ा सा वार्म रखना होता है, या अगर हम इसको कोड करके देखें, नहीं वार्म ही आपका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, आपने इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। नहीं ये इतना अच्छा नहीं दे रहा, जब हम फोटोशॉप में करेंगे तो फिर इसको भी कर लेंगे। इतना करने के बाद अब अपने क्या करना है, अब इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए आपने यहाँ पे इमेज का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपने सबसे पहले अपने मॉडल को सेव कर लेना है। देन उसके बाद आपने 16:9 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये अच्छा रेशियो होता है। यहाँ से मैं अपना एक रेंडर को एडजस्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से कैमरे पे जाऊंगा। कैमरे पे जाने के बाद यहाँ से मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को सिलेक्ट कर लूंगा ताकि मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ऐसा करने के बाद थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ करके देखते हैं ताकि हमारा शैंडिलियर पूरा आ जाए। अच्छा, शैंडिलियर पे मैं एक चीज करना चाहूंगा कि यहाँ से मैं, ये तो आपके पास मेटल होता है ना, कॉपर होगा या मेटल होगा, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी रफनेस को कम करके इसके मेटेलिक को इंक्रीज कर देना है इस तरीके से। थोड़ा सा रफनेस बढ़ा दीजिए बट मेटेलिक थोड़ा सा इसका ज्यादा रखिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर कोई और चीज़ है, जैसे कि ये आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसकी रफनेस कम कर देनी है, इसकी मेटेलिक को इंक्रीज कर देना है। इसको भी आपने ऐसे करना है, रफनेस कम करके मेटेलिक को इंक्रीज कर देना है, क्योंकि इन पे शाइन होती है तो ये माइनर माइनर सी चीज़ है बट आप इन पे काम करके अपने रेंडर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। एंड उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं।
अब अपने सीन पे जाके चेक करते हैं किस तरीके का सीन है हमारा। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपके इमेज के ऑप्शन पे जाऊंगा। इमेज के ऑप्शन पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, अपना यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद अपने कैमरा एंगल को एडजस्ट करूंगा इस तरीके से। करने के बाद मुझे बाहर का भी इम्पैक्ट चाहिए एंड यहाँ का भी चाहिए, तो दोनों को मैं एडजस्ट करूंगा अपने व्यू के अंदर इस तरीके से। यहाँ से फिर कैमरे पे जाके अपने इफेक्ट को ऑन कर दूंगा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को, एंड उसके बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लूंगा इस तरीके से। इतना सही लग रहा है। देन उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको अपनी प्रीसेट साइज को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब मैं इसको ऐड टू रेंडर क्यों कर दूंगा, क्योंकि मैं और भी मल्टीपल व्यूज लेना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक ये यहाँ पे रेंडरिंग क्यों कर दिया मैंने। देन उसके बाद मैं दूसरा रेंडर लेना चाह रहा हूँ किस तरीके से, इस तरीके का एक इसका एक रेंडर ले लेते हैं, या एक इसका एक रेंडर ले लेते हैं, ठीक है। इसके रेंडर देने के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले तो कैमरे पे जाऊंगा, डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करूंगा, डेप्थ ऑफ फील्ड, सेट फोकस ये, एंड यहाँ से इसकी ब्लर को बढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से एक रेंडर में ये लेना चाह रहा हूँ, जो कि काफी अच्छा निकल के आएगा। यहाँ से इसको रेंडर इन क्यों कर लेते हैं। देन उसके बाद और देखते हैं और हमारे पास कौन सा रेंडर निकाल सकते हैं हम। यहाँ से मैं एक इस व्यू को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको एड टू रेंडर इन क्यों, अगर 16:9 के रेशियो में देखें तो ये भी सही लग रहा है, इसको रेंडर इन क्यों कर लेते हैं। तो हमारे ये सारे रेंडर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ऐड टू रेंडर क्यू में, सॉरी यहाँ से मैं जाऊंगा रेंडर क्यू में। रेंडर क्यू में जाने के बाद अब मैं एक एक करके, बल्कि सबको एक साथ सारी इमेज को सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद यहाँ से इसको सेव एंड रेंडर करूंगा। देन उसके बाद मुझे जहाँ पे भी इसको रेंडर कराना है वहां से सबसे पहले तो मैं अपने उसी फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मेरा मॉडल होगा। देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको नेम दे देता हूँ रेंडर, एंड देन उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा। जैसे ये रेंडर होता है फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो हमारी ये इमेज D5 ने सक्सेसफुली रेंडर कर दी है। अब इनका प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन में जाऊंगा। देखिए हमने 3 इमेज को रेंडर पे लगाया था, तो देखें 3 ही इमेज आई है यहाँ से। अब मैं आपको इनको ओपन करके इनकी प्रीव्यूज दिखाता हूँ। तो देखें कितनी डिटेल्ड में हमारे पास इसके रेंडर निकल के आए हैं, हर चीज आप ये देखें। यहाँ पे प्लांट्स लगा हुआ था तो इसकी आप ग्रास वगैरह देखें। हमने यहाँ पे मटेरियल्स को शाइन दिया था, ग्लोसी इफेक्ट दिया था, वो चीजें भी हमारे पास यहाँ पे कितनी क्लियरिटी नजर आ रही है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको ग्लास बनाया था तो ये ग्लास प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। हमने फ्लोर पे शाइन एड की थी, ग्लोसीनेस, जिससे हमारा जो ओवरऑल जो रेंडर है वो काफी इनहेंस हो गया है। एंड उसके बाद हमने दूसरे भी रेंडर निकाले थे। ये देखें ये कितना अच्छा रेंडर निकल के आया है। पीछे आप देखें ब्लर इफेक्ट कितना हो रखा है, जिससे काफी अच्छा लुक निकल के आ रहा है। एंड उसके बाद ये थर्ड वन हमने साइड से लिया था तो ये भी काफी अच्छा रेंडर हमारे पास निकल के आया है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी थोड़ी सी ना कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं। कलर ग्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, इस इमेज को मैं पहले फोटोशॉप के अंदर लेके जाता हूँ, देन उसके बाद आपको कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस समझाता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले इसको हटाता हूँ एंड जिस इमेज को मुझे कलर ग्रेडिंग करनी है मैं इस इमेज को लेके जाता हूँ। देन उसके बाद इसको फोटोशॉप कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंट्रोल चेक करूंगा। कंट्रोल चेक करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है। तो कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपका कैमरा रॉ फिल्टर ऑन हो जाएगा। कैमरा रॉ फिल्टर हमारे पास ऑन हो चुका है। हम यहाँ पे इसकी बेसिक्स में जाएंगे और इसके टेम्परेचर को थोड़ा मैं वार्म करूंगा इस तरीके से। इसके एक्सपोजर को 0.5, कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, हाइलाइट्स भी थोड़ी, हाइलाइट्स कम करूंगा मैं यहाँ पे, अराउंड -25 कर दूंगा मैं। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से शेडोज को भी थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा, यहाँ से 20 कर दूंगा। वाइट्स को भी मैं कम करूंगा, यहाँ से -25 कर देता हूँ। देन उसके बाद ब्लैक्स को थोड़ा सा -30 कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से क्या करूंगा, मैं इसकी सैचुरेशन थोड़े से बढ़ाऊंगा। एंड इसके बाद अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा वार्म इफेक्ट आ रहा है तो मैं इसको कूल की तरफ कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कर लेता हूँ मैं -2। अब देखें ओवरऑल हमारा जो लुक है वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ से आप इफेक्ट में जाए एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। अब चेक करते हैं तो देखिए आपको क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हैं, कितना ज्यादा डिफरेंस हमारे पास निकल के आ जाता है। कलर ग्रेडिंग के बाद आपके जो कलर होते हैं वो एनहेंस हो जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे करके
अब मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ से इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखें आपके पास ये हो चुका है कि यहाँ पे भी डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारे पास डिफरेंस निकल के आया है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको एक्सपोर्ट कराना है। एक्सपोर्ट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद फाइल में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट एस कर दूंगा। एक्सपोर्ट एस करने के बाद यहाँ से आप इसकी क्वालिटी हाई कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ से देखिए आपके पास 4K एक्सपोर्ट करना है आपको। एक्सपोर्ट आपको जहाँ करना है वहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसको मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद अब मैं इसको पर ये इमेज हाई है हमारे पास, ये देखें ये वाली थी। तो अब देखें आपके पास डिफरेंस कितना क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से आप इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद अपने किसी भी मॉडल का रेंडर निकाल सकते हैं D5 के अंदर। सारे प्रोसेस सारे स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।